Okay, good morning, all of you. Hello, am I audible? Yes, sir. Okay, so the new sir who is coming for demo class, he is suffering some fever. Right now, I'm starting. Today class, some concept is left. Those are very, very important for the entrance point of view. So that part I want to discuss. Nothing new. And from the Monday onwards, your test series will start, part test, full test for the NEET. What is our program according to last meeting, yesterday meeting with the director sir? We have to conducting everyday test. Everyday test means we have to send the PPT questions, 20 questions to you, and you have to first we have to send the papers. The next day, those 20 questions we want to discuss on the board, and apart from that, you can ask any questions from any doubt from any book. That type of going on. No teaching scheduled for 1 month up to 25th. Then frequently 3 and 4 full test we have to conduct. Then we have to ready you to send in the exam hall. Right? This is our program according to discussion last meeting. So that is the what I find there's lack of the that means diagram. I mean ray diagram. One questions I want to tell you because sir asked from the sir told you, I instruct you, I sit beside the sir. All class I'm watching and instructing that behind of the screen. So one point that he left 2018 lead question one came from the he didn't explain what is the vectorial concept of the refractions. If you have paper 2018, look this questions came. Vectorial concepts. What is the vectorial concepts? Law of refractions. Are told law of refractions. Listen carefully. This is the interface. This is the interface. Suppose the rare medium with the denser mediums. Am I right? This is the interface. The plane which divides the two mediums that is called interface. Okay. You see the rays coming like this because it is homogeneous mediums. The medium mu1 is homogeneous. I mean from here to here the temperature same, pressure same, intensity same, density same. That is called homogeneous mediums. Okay. Actually, in practice, it does not happen. Suppose we are moving from surface of Earth towards Sun. Definitely, refractive index varied, but we assume total refractive index is constant. That is the homogeneous medium. That is the very, very important point. Second, mu2 also, this is the mu1, this is the mu2 also homogeneous mediums. So that is the normal because this is the plane, is the interface plane, is not a straight line, it is a plane. This is the angle of incidence. Suppose let mu2 greater than mu1. So obviously
This is the normal should be dot lines because it is a draw lines. It is not a ray. It should be always represented by dot lines. So if mu2 greater than mu1, that means it's somewhat denser in the rear. So light coming from rear to denser, it bending towards normal. That is also explained by pictorially. Theoretically, this is the R. Am I right? I told in laws of refractions, all rays, all angle concerned with the refractions, those are in vectors. So the angle of incidence should be measured from the normal. We have to make this is the directions. This direction should be this side from normal. This is the normal. This is the normal. So it should be expressed this like is normal. That is vector. So if it is a vector, let the unit vector is equal to E1 cap, incident ray, and it will be E2 cap. And this is the normals, let the direction in cap. I mean, all are in unit vectors. First are told mu1 sin I, Snell's law, mu1 sin I is equal to mu2 sin R. Is not it? That told already mu1 sin I is equal to mu2 sin R. This Snell's law is only valid under some constant conditions. The conditions over the interface, one homogeneous mediums, below the interface should be another homogeneous mediums. That means the medium never be diluted. The temperature, pressure, everything, every physical term should be maintained constant. Henceforth, this one is valid. This is the limitation of this law. Second, what is the vectors? Vector concern total left. Is the latest trend of the questions 2018. I also show this exact question to you right now. You see the mu1 sin I, it is completely scalar quantity because angle is scalar, mu also refractive index is a constant which depends the medium, its refractive sense of refractions, that is called constant. But it is a vector. Definitely, from the point of view, the essence is coming. That is definitely it should be represented by the term of vector like the laws of reflection. So that means the angle made by the normal and E1 cap. E1 cap means what is? If we extend that is this one's, if extended E1, this is the E1. It's in cap only. Yes or no? Because it's the same line. And this is the normal. This angle is angle of incidence actually. According to vector aspects, because angle should be always measured according to vector. All of you know vector. Vector पढ़ चुके हैं आप. The angle between vector either telltale or headed joint. If you tell I, it is infinite round because their tails incident ray tail here and normal tail also here. Your tail joint. So this is the actual angle. So what is this angle? Pi minus I. Pi. 1702 रे school code. Understand? Do you follow me what I'm speaking? All of you know they definitely read vector in class 11. The angle between two vector, either both vector or telltale should have to joint or headed joint. If you tell I the angle of incidence, correct. It is not the angle between normal and incident ray. If you tell, you are super duper flop. Because definitely one can tell you have no idea about vector. So actually vectorial angle between normal and incident ray is equal to pi minus I. Do you follow me what I'm speaking? Hello. Similarly, E2 n cap, this one E2 n cap, this is the I, this is the R, angle of refraction. So if R, this is the angle between E2, this is the angle between E2 from the normal, I mean the measure should be this lines.
This would be what is pi minus r. That means pi minus r, because this one r, this one total 180 apart from r is equal to pi minus r. So now we have to convert in vectorial form this Snell's law. Snell's law have some limitations. It is only valid for the homogeneous refractive index. Okay, so mu1, we write the mu1 sin I. This is I means what is the angle? Sin I. This is the pi minus I, angle between normal and incident ray. So all of you know incident ray A cross B normal is equal to E cap magnitude into N cap magnitude for the angle sin pi minus I. Do you follow me? So E vector cross N vector is equal to what is sin I. Sin I. This is the sin I. Similarly, sin R, this is the equation number 1 and equation number 2. Similarly, E2 cap cross N cap cross for A cross B is equal to FB sin theta. What is this? The unit vector magnitude must be 1. Is the sin pi minus r. Definitely sin pi minus r is equal to sin r. The equation number 3. Now, equation 2, equation 3 should be substituted to 1. Tell me, the vector we increase, we inject vector concept in the Snell's law. Now the Snell's law flush out in the mode of vector. What is this one? So mu1, it will be what is mu1 into sin I. Sin I what is u1 vector cross n vector. Don't take magnitudes. Magnitude is against what is coming. This is a scalar concept. Is equal to what is mu2 sin r. Sin r what is e1 e2 cap. This is the e2 cap. Sorry, because angle. This is the e2. This is the e2, and this is the n. So it is e2 cap into n cap. Okay, this is the vector concept of the Snell's law. It is very, very important, latest trend, because it is this questions is already given by the expert in 2018 NEET exams. If you have book previous year question paper, you have to look. Mu1 sin I, mu2 sin I, all of you know from the class 9 also. It is not a matter to teach. Okay. How these questions came, exactly not remember the questions, but the exact model I want to show. What is this one? Okay. This questions, the problem 2018 needs. The problem 2018 needs. Okay. Offline paper, because NEET till now not online. Next year onwards it will be online, I think. So 2018 NEET for the questions exact model. I'm not taking the exactly magnitudes, numerical value, but model is the same. What is this one? This is the interface. This question is not given in picture, but I explain by drawing a picture so that you will understand very clearly. So this picture gives the interface is the XY plane. See the Z is equal to 0. This plane equation given Z is equal to 0 means it is definitely Z is equal to XY plane. XY
right? And you see the incident ray givens, incident ray given, suppose 2 I cap plus 3 j cap. Incident ray, this is the incident ray, not unit vector givens. And after refractions, this will be bent like this. I don't know coming approach or going away, but this data is given only. This one is equal to emergent ray or refracted ray is equal to what is minus 2 I cap cross 3 j cap or 4 j cap or 4 j cap, right? This value I'm not remember. I tell frankly I'm not remember, but I put exactly model. Question that what is the mu1? This is the mu1. This is the mu2. We have to find what is the ratio of mu1 by mu2. We have the option given in ABCD form. We have to select. Do it. Try to do. Already concept I told. What concepts are not told? Left. I find. I think those are, if you left those concepts, you definitely lost a lot of. Therefore, I want to give a patchwork. Take a patchwork. Right? Because in some other class I'm engaged. Therefore, not taking your class. Sorry for it. So, but those part is very, very important. Mu1 sin A, mu2 sin A, that part is gone before 2013. Before. Right after to the factor, some new models, new trend of concept will come. That I want to discuss. Now, can you get this answer? Hello. So we have to go for very simple. This formula you have to apply. Mu1 sin A is equal to mu2 sin A. This formula. So what is the answer? Answer will be what is? What the answer? Look here. The solution will be, look here. We have to vector concepts because it is vector givens. If you go for plain Snell's law, you obviously feel problem. Obviously feel problems. So we have to vector. We have to go that mu1 e1 cap cross product n cap is equal to mu2 whole into e2 cap cross n cap, right? So we have to find mu1 by mu2. Mu1 by mu. Very easy. E2 cap. Need problems here are very easy. That is E1 cap cross n cap. Don't cross, don't cancel nn because it is a cross product. Okay. E1 cap means what is E2 cap? mu1 by mu2. E2 cap means this one E2. First cross product, you have to write cross product minus 2i cross 4j is unit vector. So divide by 4 plus 16 plus 4, 20 root over unit vector, because this the E2 is a unit vector, it is a vector. We have to convert unit vector. If the vector is equal to ai cap, bj cap, or ck cap, unit vector is equal to ai cap, bj cap, c cap divided modulus of it. Am I right? So by this concept, I am taking unit vector, that means E2 cap cross n cap. N cap means it is giving the xy plane. Definitely it is the z axis. Z axis means cross k cap. Is the z axis, so is the cross k cap. Divide by, okay, divide by is equal to what is E2 cap.
E2 cap cross sorry E1 cap, E1 cap means similarly 2I cap plus 3J cap divided by 9 plus 4, 13 root over into K cap. But mu is scalar quantity, so we have to consider its magnitudes. Then cross product, all of you know, I cross I0, J cross I0, I cross JK, J cross KI, that we can do and take the modulus we can get, because mu2 and mu1 become mu1 mu2 constant, ratio of constant, of course constant, it does not bear any essence of the vector, therefore you can tell the modulus. Am I right? This question, the same type of questions already came in 2018 NEET questions. Look. Am I right? Hello. Hello. Yes, sir. Any questions from your side? So you have to look your previous note, what's are taught. This concept already left. So I want to patch because 2018 came means 2021 must be same essence question may become, I predict. Therefore, I do not want to leave that. So next concept parts are left. That's the ray diagram. Almost all concepts leave the ray diagram, perfect the ray diagram. So for I concerns, without properly ray diagrams, student cannot be feel comfort. This may be my personal opinion, but I am telling you. Where leave the ray diagrams, that is very frank to tell, that is the apparent depth and apparent height. Also, we miss the ray diagram. So if you look the figure already recorded, look at due to lack of ray diagrams, he giving the perfect position of the bar and fish in perils. I miss in wrong positions. Because fact of the ray diagrams, actually when you look bird flying in the sky, the bird, suppose the bird from the surface of Earth is equal to 200 kilometers. It look more than 200 kilometers, not less than 200 kilometers. हमको लगेगा बार मोर देन 200 किलोमीटर में फ्लाई हो रहा है. हम plane is moving, plane is flying. Look, plane is actually 100 kilometers from the surface of Earth, but look as if it is flying 150 kilometers distance from the surface of Earth. But when he explains, he put the bar positions below the real positions. It is wrong because lack of ray diagrams. So this part I want to explain. Of course, you get some extra idea so that it will be definitely beneficial to you, right? Okay. So this is the apparent depth, just like patchwork, a small patchwork I'm going on. Okay. So second, apparent depth, because from here first apparent depth. Apparent depth means it look like there. Apparent, it look like there. Look there, not actually apparent, look like. Generally, we are telling, you are look like one hero. You look like one hero. Actually, you are not a hero. You look like apparent. So this is from this ray diagram the most important. And from point of view that he also left one concept, because apparent depth should be depend on the looking condition, looking attitudes, looking orientations. When direct eye looks, it look different. If I look in some incline, कृष्णा, भगवान कृष्णा कैसे देखते हैं? थोड़ा एंगल में. इसका खड़ा होने का स्टाइल, देखने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट. It look like some angle, that also apparent depth should be different.
it is not d by mu. In some cases, it less than d mu. In some cases, d by mu. So apparent depth depends on the condition of looking. So looking is two types. Looking is two types. Can you say what are these? आपको पूरा रे डायग्राम में पढ़ा दूंगा कैसे अपरेंट व्यू, अपरेंट डेप्थ जो बताया सर, अपरेंट डेप्थ डी अपरेंट इक्वल टू डी बाई म्यू होता है और एच बाई म्यू होता है. इसको विदाउट ड्रॉ द डायग्राम्स एक्सप्लेनिंग्स इट इज देयरफॉर आई फाइंड समवेयर देन फिगर्स दैट get confused in the position of the image. So looking at two types. One is in normal view. हम डायरेक्ट टू डायरेक्ट देखेंगे. आप वहां पर बैठे हैं ना, डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट आई टू आई, द नॉर्मल व्यू. इफ आई लुक यू विथ सम एंगल मेक विथ नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड inclined view. So view is two types. One normal view, one inclined view. First, most of questions normal view. Really questions came in the mains also. Mains, if you appear the mains, you are preparing for engineering. Normal inclined view is the most important. Very important. Okay, for NEET, of course, the time span is very less, so never put the inclined view. Okay, but with ray diagrams, ray diagram, what is very small. It is, I'm not extending because only I'm doing the patchwork. राइट. सो अपरेंट डेप्थ मीन्स क्या है, नीचे, हाइट मीन्स ऊपर. तो ये हो गया एक मीडियम, मान लीजिए एयर मीडियम, और ये वाटर मीडियम. मान लीजिए फिश, जैसे सार पढ़ाया मैं इसको भी पढ़ाता हूँ, एयर मीडियम्स एंड वाटर मीडियम्स. ठीक है. इससे that is a fish they are here, right? I can't able to draw the fish, but in book it is giving the fish. F for fish. F for friend हो सकता है, fan हो सकता है, but you understand F for fish here. It is actually depth. ये normal view. ये actually depth. D actually AC. Actually, okay, depth. A event or object, this is take as object. Listen. Now observer is the bar. Depth होता है. Object in normal view is the bar here. This is the bar. Normal, along the normal is the perpendicular. Right? Normal view. I means the bar eye must be here. Pure normal view, it is called normal view. Normal, pure direct to direct decline. Normal, along the normal. कैसे लेवल होगा? So ray diagram go for that. Therefore he put the figure somewhat wrongly set. So कौन सा? ये observer. Bar is observer. Listen carefully. ये object, right? Observer looks object according to their work. We name it observer and object or event, right? बार देख रहे हैं, ये फिश क्या कर रहे हैं, पानी के अंदर में क्या कर रहा है, कहाँ पर है, तो हम इसको हंटिंग करेंगे. तो ठीक है, इसको करने दीजिए. यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट पानी का बदल से इसका एम दैट कॉन्सेप्ट शुड बी डिफरेंट. दैट इज हाउ. सो हम फिश को ऑब्जेक्ट, ऑलवेज रे कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट गोइंग टू द आर्ट. तो हम लोग यहाँ से देखिए, यहाँ से एक नॉर्मल व्यू लगता है, नॉर्मल डायरेक्ट आ जाता है. नॉर्मल, ये नॉर्मल कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा बिकॉज आई इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 0, साइन 0 0 एंड साइन आर ऑल्सो 0. तो कोई रिफ्रैक्शन का चांस नहीं है. नॉर्मल व्यू नेवर बी रिफ्रैक्टेड, नेवर बी रिफ्लेक्टेड बैक ऑल्सो. ओके, बिकॉज देयर नो मिरर्स, नॉट चांस टू टर्न बैक, so it passes to mediums along the normal. ठीक है.
सो एक इमेज निकलने के लिए हमको मिनिमम 2 रे चाहिए। एक तो रे हो गया और एक चाहिए, कोई भी रे लीजिए, कोई भी, बट दिस शुड बी ओरिएंटिंग फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट। यहां से देखिए मैं ऑब्जेक्ट से एक लिया ऐसे, और एक ले लिया जैसे ऐसे नॉर्मल, राइट, ये नॉर्मल इंटरफेस होता है। इसको डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। दिस इज द आई एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस। इसमें देखिए सर आपको नॉर्मल व्यू कहते हैं, रे तो इज गोइंग दैट लाइक, सो बार शुड बी हियर, दैट शुड बी बार, but if bar is there it can't able to look the objects because ray is coming from object entering the eye of observer, so that observer catch the image of the object. Therefore how it is possible, it will look like a angular view, inclined view, but if I and r is very small, they not equal to 0, very small, so definitely this bar is shifted this wards again come to here. So that means normal view is only possible if I and r are very small. I means what? Angle of incidence. R means what is? Angle of reflection. Try to understand the logic. Try to understand logic. You will be master in physics. Kota and Career Point Bonsals, exclusively I know as optics teacher because almost all classes set as optics. दिस आई एंड आर। आप यहाँ पर सवाल में डाल सकते हैं सर आप तो यहाँ पर आंख दिखा दिया, बैड को आंख यहाँ पर दिखा दिया, ये बाढ़ का हो गया, बट इससे कैसे है, ये तो इंक्लाइन व्यू हो गया। कोई बाढ़ को फिश को देख रहा है इसे एंगल से, इसे खड़ा हो थोड़ा एंगल से, बट इट इज नॉर्मल व्यू आई टोल्ड बिकॉज इट इज ओनली पॉसिबल इफ आई एंड आर वेरी वेरी स्मॉल, नॉट इक्वल टू 0। इसका जो तो नॉर्मल व्यू हो जाएगा, कोई शिफ्ट फैशन होगा, कोई शिफ्ट मालूम नहीं होगा कहां पर पोजीशन ऑफ द इमेज, सो इट इज वेरी स्मॉल, नॉट इक्वल टू 0 अप्रोक्सीमेशंस। सो आई एंड आर मस्ट बी वेरी स्मॉल, so that I and R are small, so that inclined view becomes normal view, right? This is the very very important. Now where the image should be reflection image, how? Same sides, that means same side of objects you have to extend it. If you extended it, देखिए पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। ये अभी फिश यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होगा, किसका? फिश का इमेज। सो देखिए जो ऑब्जर्वर है ये इमेज का साथ रिलेशन है, ऑब्जेक्ट का साथ कुछ रिलेशन है। ऑब्जेक्ट से लाइट आएगा ये तो ठीक है, ये तो पक्का सॉलिड, लाइट इज कमिंग, लाइट सोर्स ऑब्जेक्ट होता है, बट ऑब्जर्वर किसको देखता है? इमेज को देखता है। आई लुक यू, यू आर नॉट ऑब्जेक्ट, यू आर माई इमेज। आपको लाइट आता है, मेरा आंख लेंस में जाता है, जो इमेज फॉर्मेशन में लेता हूँ दैट इज यू, आई लुक योर इमेज, ठीक है। सो दिस बार नाउ नॉर्मल व्यू से यहाँ ही दिखेगा फिश, नाउ इट विल बी द इमेज ऑफ फिश, नाउ फिश इज लुक लाइक हियर, सो दिस हाइट इज apparent height, this height is a d apparent, look here, now clear? These ray diagrams are left so that the position of image object always confused। तो हमको डी अपरेंट निकालेंगे, डी अपरेंट, यस यू हैव टू राइट, रिमेंबर डी अपरेंट इज इक्वल टू डी एक्चुअल बाय मी, दैट रिमेंबर इट इज एनफ फॉर द नीट, बट यू आर बिगनर, you are not doing 2-3 years, beginner, therefore I don't know, your teachers may teach in the class or class note, I don't know, for a little bit of it will take only 1 minute, then you find d apparent is equal to d by mu, आपको मालूम हो जाएगा d by mu। अब देखिए कैसे, वेरी सिंपल, मैं देखा है i and r वेरी स्मॉल, इसमें r हुआ तो ये हो गया r, this one also r,
एंड इसमें आई हुआ तो इसमें आई। नाउ इसमें आप लिख दीजिए ए सी, बी तो दिया है बात, ए सी। देखिए टैन आई म्यू वन साइन आई, म्यू वन साइन आई, म्यू टू, ये म्यू टू वार्ड का म्यू टू लीजिए, ये म्यू वन लिखिए, म्यू टू साइन आई स्नेल्स लॉ इज इक्वल टू म्यू वन साइन आर। am I right? देखिए मैं देखा है आई आर आर वेरी स्मॉल। स्मॉल का मतलब क्या है? साइन एंड टैन ऑलवेज इन सेम ग्रुप। साइन also increasing function, tan also increasing function. So though I and R are very small, we can take mu to tan I. We can take mu to tan I because I and R are very small. Mu one tan R. देखिए आराम से देखिए, आराम से देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना आपको कंसेप्ट को अचीव करेंगे इतना कंसेप्ट को आप हेल्प करेंगे, इतना कंसेप्ट आपको हेल्प करेंगे। mu one tan I क्यों लिखते हैं? बिकॉज ऑलरेडी आई एम टोल्ड भाई आई आर आर वेरी स्मॉल, अदरवाइज इट नेवर बी ए नॉर्मल व्यू। इंक्लाइंड व्यू को मैं नॉर्मल व्यू करने के लिए एक कंडीशन मेरे को चाहिए, आई आर शुड बी वेरी स्मॉल, मे नॉट बी इक्वल टू 0 बट मस्ट बी वेरी स्मॉल। जैसे आई इस तरफ आएगा, यहाँ से जितना छोटा करेगा ये बार इस तरफ आके यहाँ पर पहुंच जाएगा। डू यू फॉलो माई कंसेप्ट? हेलो। सो टैन आई क्या होता है? टैन आई परपेंडिकुलर बेस होता है, परपेंडिकुलर ए सी। बेस क्या होता है? बी एक्चुअल। म्यू टू क्या होता है? परपेंडिकुलर ए सी बाय बी अपारेंट। सिमिलरली योर म्यू वन टैन आर ए सी डिवाइड बाय बी, और ये डी एक्चुअल होता है, ये रॉन्ग है, डी एक्चुअल होता है। आप कुछ बोलना चाहिए एक्चुअल, इधर डी एक्चुअली एक्चुअल, ये म्यू वन ए सी बाई डी अपारेंट। आप देखिए ट्रायंगल देखिए, आपको पिक्चर देखिए, मैं रे डायग्राम, रे डायग्राम मींस इधर नोन एज रे ऑप्टिक्स। विदाउट रे डायग्राम वन कैन नॉट अंडरस्टैंड परफेक्टली। इफ यू mug up some concepts that may be helpful in futures, but you never clear in the concept, and concept without clear the concept this has no meaning. That is AC is D apparent, so AC cancel हो जाएगा, so we have to find D apparent. D apparent is equal to D actually divided by mu 2 by mu 1. Mu 2 by mu 1 always respect mu 1 जो नीचे रहते हैं इसको respect बोलते हैं, क्योंकि तो mu 2 by mu 1 all of you know in the class 12 d actually by mu 2 by mu 1 always mu, because mu is equal to mu 2 by mu 1, right? Going medium by coming medium, right? So this is the formula. Normal view हम लोग आ गया, d apparent equal to d by mu, d actually by, so definitely mu is always greater than 1, so d apparent must be less than d. So यहाँ से देखिए d apparent d actual से छोटा हो रहा है, so therefore suppose we have to put a coin in the bucket of water. Look, the coin looks as if it is raised up, थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, actually not ऊपर, it is apparent, it look like that, but actually in the real depth d. Do you follow me? Any questions from your side? आप देखिए आराम से देखिए. So that formula is valid in what cases? Can you say, anybody can say? If the normal view, I mean angle of incidence, angle of refraction must be very small. Do you follow me? Hello. Hello. Manasini? Tell me. This is the very important. Lack of ray diagrams. Now you will clear. फिर हम inclined view में लेंगे, right? Inclined view में जो मेंस में आता है,
कभी कभी ऐसे गारंटी नहीं भाई कहां पर आएगा, आई एम टेलिंग यू द फ्रॉम मेंस, बट समटाइम्स दे मे बिगिन द नीट, नो गारंटी राइट नाउ। ओके, सो दिस इज द नाउ नॉर्मल शिफ्ट कितना होगा, नॉर्मल शिफ्ट देखिए, नॉर्मल शिफ्ट यहां से एक्चुअली पोजीशन 1 था, एक्चुअली पोजीशन कहां पर था, एक्चुअली पोजीशन था यहाँ पर। देखिए ये फीस का पोजीशन यहाँ पर था, अभी देखा ही जाता है यहाँ पर, ये अपरेंट पोजीशन, दिस इज द अपरेंट पोजीशन, दिस इज द एक्चुअल पोजीशन। ये कितना ऊपर दिखाए थे, नॉर्मल कितना शिफ्ट हुआ, अलोंग दी नॉर्मल कितना शिफ्ट हुआ, इसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। ऊपर से कितना, नीचे से एक्चुअली पोजीशन से कितना ऊपर ऊपर दिखाई देता है, कितना ऊपर में है, इट इज नॉट एक्चुअली, इट लुक लाइक, लुक अजीब। तो कितना नॉर्मल शिफ्ट, सो नॉर्मल शिफ्ट ये था सर, ठीक बताया था, नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू कितना, एक्चुअली हाइट माइनस डी अपरेंट। तो ये तो इतना समझ गया तो हो जाएगा, एक्चुअल हाइट माइनस डी अपरेंट, डी अपरेंट क्या होता है, डी एक्चुअल बाय म्यू, डी एक्चुअल बाय म्यू, म्यू इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1। So d actual you have to take common 1 minus 1 by b, this is the normal shift। और एक पोजीशन से मेरे को जरूरत लगा, सर टेलिंग सर वी हैव ऑल थिंग्स मेजर फ्रॉम द surface, I mean surface of water, I mean the interface, everything should be, yes that is obviously correct but not always correct। मान लीजिए आप you have to take some water in a beaker, ऐसे suppose we have taken water in a beaker, यहाँ पर मैं वाटर लिया, इतना वाटर, राइट, यहाँ पर मैं एक फिक्स पकड़ लिया, मैं यहाँ पर एक फिक्स, यहाँ पर मैं फिक्स रखा, यहाँ पर एक बार रखा, ठीक है, यहाँ पर एक देखिए बार रखा, राइट, यहाँ पर बार, ये जो हाइट, ये फिक्स का हाइट, ये एक्चुअली हाइट, ये एक्चुअली, और ये अपरेंट, ये हाइट, we are measuring this point, correct, it is correct but not always correct। मान लीजिए दिस अपर सरफेस ऑफ वाटर, यहाँ पर मैं एक ओरिफिस बना दिया, एक होल बना दिया, वाटर इस तरफ आ रहा है, तो ये सरफेस क्या होगा, ये सरफेस डेफिनेटली गिरेगा। सो सरफेस इज कांस्टेंट एंड वेरिएबल, टेल मी, बीकर में एक छेद कर दिया जाए, डेफिनेटली वाटर सरफेस नेवर बी कांस्टेंट, इसका जो हाइट, वाटर का हाइट, ये आहिस्ता 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 नीचे आएगा, दैट यू ऑब्जर्व और नॉट, टेल मी, हेलो हेलो, इस कंडीशन में वाटर सरफेस नेवर बी कांस्टेंट, इट इज वेरिएबल। तो इस प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम आया था, इस प्रॉब्लम में यू कैन टेल दिस इंटरसरफेस आर द रेफरेंस फ्रेम, यू कैन टेल। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दूसरा एंगल लेते हैं, therefore I am telling sir told not absolutely correct but is correct। sole condition is water surface remain constant, the interface does not change the position with respect to time। if it is positions, if one's position change according to mechanical concepts, reference frame, law of relativity, you never take this is the reference frame, reference lines, because ये तो फ्लक्चुएट हो रहा है, जो समय चेंज करना चाहता है फ्लक्चुएट हो रहा है, इसको कैसे हम लोग प्रेफरेंस, इसका सब कैसे कंपेयर करेंगे, आज वहां पर है तो कल उधर है, आज मुंबई में तो कल भुवनेश्वर में, कल अमेरिका में, इसको हम कैसे रेफरेंस लेंगे, इसमें बहुत डिफरेंस। So this type of problems, so that when you tell all things measured from the reference frames, that means this reference frame or plane or anything,
दैट शुड बी कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम का साथ ये बदलना नहीं चाहिए. So here is okay, d apparent is equal to d by mu, normal shift is equal to d minus d by mu. ये तो ठीक है, providing the reference frame must be constant, it never be variable with respect to time. प्लेस का साथ टाइम का साथ ये वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तब ये दिस रिजल्ट इज करेक्ट. इस टाइप का प्रॉब्लम्स हम देखेंगे, बनाएंगे आज फिर कैसे होता है, राइट. तो देखिए इसमें बताऊंगा आपको, फिर आपको एक हमसे नहीं बताया गया करेक्शन कॉमिक्स जो बाढ़ का और फीस का किंग फिशर का प्रॉब्लम बता सर, आंसर था -4.5 मीटर पर सेकेंड. ये कैसे कैसे पढ़ा दिया मेरे को समझ नहीं आता है, आपको समझ सकते हैं, मे बी वेरी टू वेरी पर्सन टू पर्सन, बिकॉज इट इस प्रॉब्लम इज सॉल्व वेरी नाइसली एंड इजीली. इतना जबरदस्त इम्प्लीमेंटेशन करना नहीं जरूरत है. ये आया था क्वेश्चन, बहुत पुराना क्वेश्चन है, हर बुक में कंटेंट्स, कोई भी बुक उठा लीजिए इसमें आया. Easy questions that you know, sir already explains and explain that the only one means, give the one means and explains. No need to that type of diagram. ऊपर इसके क्वेश्चन भी वो जो बार का जो पोजीशन वो भी पिक्चर में गलत देखा था, नीचे देखा था, एक्चुअली बार का पोजीशन ऊपर में था. ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा. पहले अपरेंट हाइट डेप्थ हो गया, नॉर्मल शिफ्ट हो गया, प्रोवाइडिंग कंडीशन क्या है, लिमिटेशन क्या है, द सरफेस इंटरफेस मस्ट बी कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. इसको आप नहीं लिखेंगे तो आप +2 एग्जाम दीजिए, इसको 2 मार्क आपका 1 मार्क हटा जाएगा. कोई टैलेंटेड टीचर लिखा तो देखा तो आपका पेपर जरूर घटाएगा. एक सवाल उठता है यहाँ पर, स्टूडेंट नेवर विद कंसेप्ट क्लियर इन कंसेप्ट, सवाल उठता है. ठीक है, अभी अपरेंट हाइट बताऊंगा, उसका बाद बार और सेम प्रॉब्लम करेंगे. देखिए 1 सेकेंड यू गेट आंसर, नो नीड टू टिक टिक टैक टिक टैक टिक टैक टिक टैक. ओके, देखिए मैं उसका बाद एक क्वेश्चन बनाऊंगा भी, आप देखिए. एक क्वेश्चन बनाता हूँ, पहले मैं क्वेश्चन बनाता हूँ. ठीक है, आपको हाइट का बात बताऊँ. देखिए अपरेंट हाइट, अपरेंट हाइट, अपरेंट हाइट, अब देखिए अपरेंट हाइट क्या होता है. सेम अपरेंट मीन्स नॉट ट्रू, नॉट एक्चुअल. हमको जो देखते हैं अपरेंट, बट एक्चुअली हाथी का दाम देखने के लिए, खाने के लिए देखे, ऐसा अपरेंट. ठीक है, सो इससे अपरेंट क्या होता है. ठीक है, एक अपरेंट क्या करेंगे, अपरेंट हाइट, हाइट होता है. देखिए मैं इंटरफेस, इसको मैं ले लेता हूँ इंटरफेस, इंटरफेस, इंटरप्लेन ऑल्सो आप ले सकते हैं इंटरफेस. ये ले लिया वाटर, इसका डेंसर मीडियम म्यू2 लेता है, ये रेयर मीडियम्स एयर ए म्यू1 and mu2 greater than mu1. वाटर का 4/3 होता है, एयर तो 1 होता है, ये 1.3 पे डेफिनेटली mu2 greater than mu1. हम लोग अभी हाइट मापे हैं, किसका हाइट, बाढ़ का हाइट. मान लीजिए आप बाढ़ यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर बाढ़ है, हाइट एच हाइट में, ये एच एक्चुअल हाइट, हाइट का सिंबल एक्चुअली होता है एच. सो बाढ़ फीस यहाँ पर होता है, नॉर्मल व्यू फीस यहाँ पर होता है, फीस यहाँ पर. ठीक है, तो ये हो गया फीस ऑब्जर्व करता बार को, मींस बार विथ रेस्पेक्ट टू फीस, फीस इज ऑब्जर्वर, बार इज ऑब्जेक्ट. सो हम बोला है लाइट इज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, द सोर्स ऑफ लाइट, लाइट कहाँ से आता है, ऑब्जेक्ट से आता है. सो
हम लोग इस नॉर्मल व्यू लिया, 2 लाइन चाहिए हमको, 2 लाइन चाहिए हमको, एक नॉर्मल लाइन में पूरा नॉर्मल, कोई रिफ्लेक्शन का सवाल नहीं उठता है। फिर और एक रे चाहिए, यहाँ से रे लगा, राइट, यहाँ से रे लगा, तो ये नॉर्मल। तो इंटरफेस इसका वेलोसिटी 0 होना चाहिए। ये चेंज होगा तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा बेटा। तो रिफरेंस फ्रेम लेता है, देखिए यहाँ से सब हाइट लिया, कहाँ से एच एक्चुअल हाइट, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से एवरीथिंग मेजर फ्रॉम हियर, और प्रोवाइडिंग इट इज कांस्टेंट। ये फ्रैक्चर होगा तो काम खत्म, कुछ नहीं काम करेगा। ये फॉर्मूला शुड बी प्रूव्ड एज रॉन्ग। सो ये नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल, ये रियर में जो डेंसर मीडियम आता है, ये बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल होता है, बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल। ये हो गया आपका आई, नॉर्मल से एंगल आई, ये हो गया आपका आर। ठीक है, ये कलर को चेंज कर देता हूँ, लाइट हो जाते हैं, राइट। ये हो गया आई, ये हो गया आर। देखिए ठीक से देखिए, अभी इसको रिफ्रैक्टेड रे को हम बढ़ाएंगे, देखिए यहाँ पर बी होगा, ये बी पोजीशन डैश, दिस हाइट फ्रॉम द सरफेस इज नोन एज अपरेंट हाइट, अपरेंट। ये बता था, आप प्लेन बी में था, अभी आप नीचे में खड़ा हैं, प्लेन को देखेंगे थोड़ा हाइट में। एक्चुअली प्लेन इज फ्लाइंग 100 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, but when you look the plane where it is flying, it looks as if it is flying more than 100 kilometers. This is the reason. And both mediums should be uniform, I mean homogeneous, or homogeneous medium. वेरिएबल में हम पढ़ाएंगे, जो सर आपको छोड़ दिया, वेरिएबल कंडीशन में कैसे होते हैं पढ़ा दूंगा। और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरिएबल कैसे आता है। एक मीडियम में जो नॉन होमोजेनियस, how it is reflected that looming and mirage, that is for non-uniform homogeneous, non-uniform non-homogeneous medium, जो आपका सिलेबस में, इनसेट सिलेबस में दिया गया, looming है, mirage है, how it bends and what type of problem will start from there, oriented from there, we can look, that is the, देखिए एक्चुअली पोजीशन ऑफ बार यहाँ पर है, बट लुक लाइक्स हियर, डू यू फॉलो मी। सो बार का हाइट एक्चुअल हाइट से ऊपर, so h apparent must be greater than h actual, so exactly here also normal view, इस तो इसमें दिखाते हैं, आप बार का आई यहाँ पर आए, ये फिश का आई यहाँ पर, so इससे नॉर्मल दिख रहा है, so नॉर्मल दिखा मीन्स आई एंड आर आर वेरी स्मॉल। ठीक है, अब इसमें आई हुआ तो ए बी आई, because this angle I, this one parallel, और R हुआ तो इसमें R और इसमें R, because ये इंटरसेक्शन स्ट्रेट लाइंस R। हम लोग ले लेंगे, फिर ए सी ले लेंगे, एग्जैक्टली आई एंड आर वेरी स्मॉल, सो लाइट यहाँ से आता है, μ1 sin R, μ2 sin R, μ2 sin R equal to μ1 sin R। ठीक है, तो R and I very small, so हम लिख सकते हैं μ2 tan R equal to μ1 tan I। Do you follow me? So μ2 tan R means SC by H apparent into SC by H apparent divided by μ1 into SC by H actual। So SC cancel, यहाँ पर H apparent equal to μ2 by μ1 into H actual। So μ2 by μ1 is equal to μ,
all of you know mu into H actual. So H mu is greater than 1, so H apparent must be greater than 1. Do you follow me? Do you follow me? अभी वेलोसिटी का कंडीशन लेंगे। नॉर्मल नॉर्मल शिफ्ट कहता हुआ यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल शिफ्ट, ये नॉर्मल शिफ्ट है, यहाँ पर था, अब यहाँ पर होगा, कितना नॉर्मल शिफ्ट हुआ? सो नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू कितना? एच अपारेंट माइनस एच एक्चुअल। सो एच अपारेंट म्यू एच, सो म्यू माइनस 1 इंटू एच, ये नॉर्मल शिफ्ट हुआ along the normal shift means along the normal, how much going up or going down, जो होता है along the normal, therefore normal shift of the body along the normal, henceforth normal shift. Do you follow me? Yes, हम sir. लोग को देखिए, मान लीजिए इसको बार, आइदर बार में भी लुक फिश और फिश में भी लुक तो बार। ये बार तो फिश को कसम नहीं दिया भाई, जब तक मैं नहीं पकड़ूंगा आप वहां पर खड़ा हो जाइए। फिश तो बार को कसम नहीं दिया भाई, मैं जब तक ऊपर नहीं जाऊंगा आपको खड़ा हो, वहां पर खड़ा हुए। तो दोनों तो मूवेबल ऑब्जेक्ट्स, ये हलचल चुलबुल आती नहीं, हलचल होगा। बार भी ऊपर आ सकता है, नीचे जा सकता है, फिश भी ऊपर जा सकता है, बैठ सकता है, ऐसे नॉर्मल भी जा सकता है, इंक्लाइन भी जा सकता है, ऐसे हॉरिजॉन्टल भी ऐसे करके जा सकता है। तो चुलबुल आदमी किस डायरेक्शन में हलचल हो सकता है। मान लीजिए बार इज फ्लोइंग दिस लाइक्स, फिश इज मूविंग दिस लाइक्स, फिश इज मूविंग इंक्लाइनली, हो सकता है। अगर ऐसे कंडीशन हमको पास आ गया, कोई प्रॉब्लम न्यू प्रॉब्लम ऐसे दिया, हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? अभी देखिए बार यहाँ पर कांस्टेंट है, बार को कसम दे के भाई आप हलचल मत कीजिए, आप यहाँ पर खड़ा हो जाइए। फिश को कसम दिया गया, बस आप भाई बैठिए। बट ये फिश बार ये बैठने वाला आदमी नहीं है, ये तो हलचल है, इसका नेचर फ्लाइंग, इसमें हलचल होगा। दैट मींस इफ इट possess both either bar or fish or both possess some velocity or accelerations, what kind of this formula exist? Yes, that the position के लिए, और वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी फॉर्मूला निकलना चाहिए। इफ द एक्सीलरेटेड बॉडी यू हैव टू गो फॉर एक्सीलरेशंस। ये वेलोसिटी में एक क्वेश्चन सारा एक्सप्लेन किया है, जो आंसर -4.5 आया था, एक्चुअली आंसर भी 4.5। ये जो बार का पोजीशन देखा था, यहाँ पर देखा था, आपका फिगर पास है, देखा था बार का पोजीशन जो अपर एंड पे यहाँ पर देखा था, ये गलत था, ये भी स्नैपशॉट निकल कर रखा है। बार लुक्स somewhat more height, it's correct, good teacher, no doubt, but it does not go for the optical diagrams, that's the ray diagrams, therefore may be wrong. अभी मैं वेलोसिटी एक्सीलरेशन फ्रेम को लेंगे। वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, इट इज एक्सीलरेशन। वेलोसिटी कांस्टेंट इज अ नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम। वेलोसिटी नॉट यूनिफॉर्म, देन इट इज एक्सीलरेटेड फ्रेम। वेलोसिटी कांस्टेंट, इनर्शियल फ्रेम। सम फ्रेम रिफर्स में कैसे लेंगे, दैट इज द मेन फैक्ट। Try to understand. This is not coming from the ordinary stars. I am not telling them get, don't take otherwise. Today ये एक्सपीरियंस पर आप भी कभी भी एक्सपीरियंस ले जाएंगे तो आपके और मेरे से भी अच्छा पता चलेगा। Because my offspring should be solicited welcome to take new India, to take off to new India. Science welcome। अब देखिए, अगर एक्सीलरेटेड फ्रेम होगा, इनर्शियल फ्रेम होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो सर आपको नहीं पढ़ा गया, डायरेक्ट आंसर करिए। अगर इफ यू नो दिस कंसेप्ट्स, चुटकी में आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, 1 सेकंड में। मैं लेता हूं, आपको थोड़ा बता देता हूं। आई एम डूइंग ओनली पैच वर्क, आई एम नॉट टीचिंग एनी न्यू थिंग्स, डोंट टेक अदरवाइज। So sir will come, again where he left he will continue, because I am entering the other class, right? हम लेंगे, देखिए मैं इसको, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वंस। नाउ मैं एक एक्सीलरेटेड इनर्शियल फ्रेम लेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम लेंगे।
nominal frame और inertial frame जिसमें oscillation 0 है, only velocity constant. Oscillation inertial frame. Now apparent depth D apparent or and H apparent in inertial frame. D apparent and H apparent inertial frame क्या बोलते हैं? बोलिए. What you understand inertial frame? Velocity remains constant or the body should be at the rest. If rest में होगा oscillation 0, velocity constant होगा oscillation 0. Therefore the inertial frame बताता हूँ. Non-inertial frame बताऊंगा फिर. Okay, homogeneous medium that is the most important. Non-homogeneous में दूसरा हो जाएगा. So ये कैसे होता है? So आपको देखिए इससे मैं लिया था इंटरफेस लिया था होमोजेनियस मीडियम्स μ1 लिया था, μ2 लिया था और ये पानी में फिश होता है. फिश कहाँ पर होता है? पानी में होता है. ये एक्चुअली डेप्थ था, ये एक्चुअली ए सी ले देता हूँ एक्चुअली. और ये नॉर्मल व्यू देखते हैं. मैं नॉर्मल व्यू यहाँ पर बार था. नॉर्मल व्यू बार का हाइट मान लीजिए h1 और फिश कहाँ पर दिखेगा? अपरेंट. ये फिश ए डैश, ये अपरेंट. वेलोसिटी ऑफ अ फिश कांस्टेंट वो रिफरेंस फ्रेम देता है. रिफरेंस. तो यहाँ पर आप देखिए बार लुक्स अपरेंट, बार लुक्स नॉट फिश, अपरेंट. तो इसका जो हाइट होता है, इसका दोनों का जो हाइट होता है, हम लोग क्या करेंगे? इसको जो हाइट होता है ये हाइट, इसका एच निकल. एच निकल क्या है? अभी क्या देखते हैं? बार विथ रेस्पेक्ट टू फिश. वेलोसिटी ऑफ बार हमको देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ फिश विथ रेस्पेक्ट टू बार. अब इसको लिखेंगे फिश विथ रेस्पेक्ट टू बार. बार लुक्स फिश, बार देख रहे हैं फिश क्या कर रहे हैं. ठीक है, दोनों का वेलोसिटी में कांस्टेंट लिया बिकॉज इनर्शियल फ्रेम लिया. ठीक है, आप देखेंगे H इज इक्वल टू h1 प्लस D अपरेंट. ये D अपरेंट H दैट इज H इज इक्वल टू h1 ये वाला प्लस ये वाला दिस वन. H इज इक्वल टू क्या है? देखिए H इज इक्वल टू h1 प्लस D अपरेंट. काम खत्म. H इज इक्वल टू h1. h1 क्या है? h1 तो बार का पोजीशन, एक्चुअल बार का पोजीशन. D अपरेंट इज इक्वल टू D एक्चुअली डिवाइड बाय म्यू. म्यू इज इक्वल टू μ2 बाय μ1. म्यू इज इक्वल टू μ2 बाय μ1. राइट. सो ये पोजीशन का ये बता था आपको. अभी ये एक्चुअली हम लोग डेरिवेटिव लेंगे इसका विथ रेस्पेक्ट टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम का साथ. दोनों साइड का डेरिवेटिव लीजिए टाइम का साथ, क्योंकि हम लोग को वेलोसिटी चाहिए. वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. और किसी वेरिएबल को हम नहीं ले सकते टाइम का साथ कितना बदल रहा है पोजीशन को. तो पोजीशन टाइम में बदल रहा है, दैट इज वेलोसिटी. वेलोसिटी इक्वल पोजीशन बाय टाइम. सो इसको स्पीड ले लेंगे हम. स्पीड एच का लिया तो एच क्या हुआ? वेलोसिटी dh बाय dt. देखिए dh1 बाय dt प्लस 1 बाय म्यू कॉन्स्टेंट्स d बाय dt d अपरेंट d एक्चुअल. सो वेलोसिटी ऑफ अ फिश विथ रेस्पेक्ट टू बार. देखिए आप बदल सकते हैं सर, एज तो कांस्टेंट है, बार
देखिए मैं बार को कांस्टेंट नहीं बताया, बार आ रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाइट पहले इतना एच था, एच इज वेरिएबल, कंप्लीट वेरिएबल, देयरफॉर टेक द डेरिवेटिव। कांस्टेंट होता है डेरिवेटिव कांस्टेंट पर 0। ये जो एच h1 डी अपरेंट, ये हलचल हो रहा है, ईच मोमेंट दे आर चेंजिंग। am I right? Therefore don't take by derivative of constant quantity 0. If you take, that means you are not understanding perfectly. So v fish with respect to bar, bar fish को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, bar is observer, fish is object. So इस कितना होगा, is equal to h1, h1 क्या है, h1 that is h1's velocity of the bar only with respect to ground plus 1 by mu, mu is equal to always mu 2 by mu 1, water medium by air medium, and d by actually velocity of actually, तो velocity of the actual को, actual किसका, फिश का, ये फॉर्मूला हो गया इनर सेल फ्रेम में, इनर सेल फ्रेम में। डू यू फॉलो मी? अगर नॉन सेल फ्रेम होगा फिर और एक बार हमको डेरिवेटिव लेना चाहिए। नॉन सेल v इज इक्वल टू, मान लीजिए v इज इक्वल टू 2t, so velocity of v is equal to 2t, how can get the acceleration, dv by dt is equal to, understand? नॉन फ्रेम में ये फॉर्मूला एग्जैक्ट होगा, इफ इज नॉन फ्रेम्स acceleration of fb is equal to acceleration of bar plus 1 by mu acceleration of fish। ये भी एक क्वेश्चन नीट में आ चुका है। इसमें नॉन फ्रेम, नॉन फ्रेम क्या है, इसमें एक्सेलरेशन कुछ है, इनर सेल फ्रेम क्या है, इसमें एक्सेलरेशन 0 होता है। इसका ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। Do you follow me? That parts are not able, but little bit of experience, young boy. So देखिए आपको जो क्वेश्चन पूछा गया, फिश ऑब्जर्व्स बार इज रोमिंग्स, bar observes fish is coming up with 3 meter per second and bar himself coming down. So इसमें उसका वैल्यू पका दीजिए, आराम से आंसर मिल जाएगा 4.5। तो वैल्यू दे गया, इस फॉर्मूला में डाल दीजिए, इतना सफरिंग करने जरूरत नहीं है। म्यू बाई वी, वी बाई म्यू, म्यू इक्वल टू सी बाई वी, इससे करके बता, फॉर्मूला रेडी, फॉर्मूला रेडी, ओनली यू हैव टू ईट। सिमिलरली द फिश विथ रेस्पेक्ट टू बार, अगर आपको बार विथ रेस्पेक्ट टू फिश, फिश बार को देख रहा है, जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था, बार देख रहे हैं, फिश देख रहे हैं, बार विथ 3 मीटर पर सेकेंड डाइविंग इनटू, इनटू मींस इनटू द वाटर, वाटर तो आ रहा है। तो कौन देख रहा है, फिश देख रहा है, किसी को देख रहा है, बार को देख रहा है। सो फिश हिमसेल्फ इज ए ऑब्जर्वर, बार इज ऑब्जेक्ट। तो टेस्ट में आप देखिए, इसमें एक्सेलरेशन फ्रेम में थोड़ा नहीं आता है, नीट में एक बार आया था, बहुत, आई थिंक आई डोंट नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट ईयर, पर एक बार आया था। बट मेंस में क्वेश्चन आना चाहिए, आएगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, ठीक है। अभी मैं देखूंगा और ये फिश हम लोग देखेंगे। देखिए ये इंटरफेस इज इक्वल टू 0, ये हलचल नहीं होना चाहिए। ये इंटरफेस ये इस तरफ बाढ़ है, ये फिश है, फिश पानी में होगा, ये वाटर, ये म्यू2, और बाढ़ नॉर्मल भी, इसमें बाढ़ होगा, राइट, इसमें बाढ़ होगा, बाढ़ ऐसे देख रहे हैं फिश। अभी फिश क्या है, फिश ये बाढ़ विथ रिस्पेक्ट टू फिश, फिश बाढ़ को देख रहा है, ठीक है। बाढ़ विथ फिश कितना होगा, रेफरेंस फ्रेम में, इनर सेल फ्रेम में, बाढ़ विथ रिस्पेक्ट टू फिश बाढ़ को देख रहा है। कहाँ देखेगा, बाढ़ इस लाइन में ऊपर में देखेगा, ये बाढ़ का पोजीशन होगा अपेरेंट, दिस इज अपेरेंट हाइट,
एक्चुअली हाइट, ये फीस का पोजीशन, ये फीस का पोजीशन, आई मीन डेप्थ डी एक्चुअल, और यहाँ से यहाँ तक अपरंट तक, क्योंकि जो ऑब्जर्वर उसका किसका साथ मतलब ऑब्जेक्ट का साथ नहीं है, इसका इमेज का साथ। मैं आपको देख रहा हूँ, आपका इमेज देख रहा हूँ, मैं आपको नहीं देख रहा हूँ। आपसे लाइट आता है मेरा मिरर में, मेरे लेंस में, आंख का लेंस में जाता है, जहां पर इमेज होगा मैं इमेज को देख रहा हूँ। ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर इज रिलेटेड टू द इमेज, नॉट विथ द नॉट टू ऑब्जेक्ट। ये सबसे बड़ा बात है ऑप्टिक्स में। सो यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर ऑब्जर्वर। ये दोनों का हाइट में लेता हूँ कैपिटल एच। तो कैपिटल एच यहाँ पर क्या होता है, कैपिटल एच इक्वल टू डी एक्चुअली प्लस एच अपारेंट। अब देखिए फिगर में, देखिए डायग्राम में, तो एच क्या होता है, एच एक्चुअली डी एक्चुअली प्लस एच अपारेंट। एच अपारेंट है म्यू एच, म्यू एच एक्चुअली, एक्चुअली कितना एच एक्चुअली, दैट इज एक्चुअली, राइट। तो ये पोजीशन में आपको बताता हूं। अभी इसको डेरिवेटिव किया तो एच को डेरिवेटिव किया तो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बार विथ रिस्पेक्ट टू फीस। फीस को देख रहा है भाई, इतना वेलोसिटी आ रहा है, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है, इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, क्योंकि बार ऑब्जेक्ट इज हिमसेल्फ टिल्टेड, सो ऑब्वियस ऑब्जेक्ट इमेज इज आल्सो टिल्टेड, शिफ्ट द इमेज पोजीशंस। सो बीएफ एक्चुअली क्या होता है, किसका एक्चुअली, फीस का एक्चुअली, डी एक्चुअली फीस का, ये वेलोसिटी ऑफ फीस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी म्यू एच एक्चुअली, किसका एक्चुअली, ये बार का, वेलोसिटी ऑफ द बार। ये फॉर्मूला आपको दिया गया, इस फॉर्मूला आधार में क्वेश्चन पूछा गया, यू नो द फॉर्मूला, यू हैव टू जस्ट पुट द वेलोसिटी, म्यू गिवन म्यू2 बाय म्यू1, म्यू2 इज इक्वल वाटर, 4/3, म्यू1 इज इक्वल वाटर्स। आप सॉल्व कर दीजिए इमीडिएटली, आई इन ए ग्लांस यू कैन गेट 4.5, नो नीड टू सॉल्व मोर, जितना दिया है डाटा सब दिया है इसमें। आर यू क्लियर। अगर ये नॉन यूनिवर्सल फ्रेम होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, तो फिर और एक बार डेरिवेटिव लीजिए जो ऑसिलेशन आएगा। Do you follow me? हेलो। इस कॉन्सेप्ट से ये बाहर जाके कोई इधर उधर करके बता दिया, इट इज नॉट करेक्ट। एवरीथिंग यू हैव टू क्लियरली ड्रॉन थ्रू द फिगर, ऑप्टिकल फिगर, आई मीन रे डायग्राम, because it is basic, its parent is figure, I mean the ray diagram, the ray optics, without diagram it cannot get through। ये हो गया आपका नॉर्मल व्यू। अगर कोई इंक्लाइन व्यू में देखेगा तो कैसे होता है, मान लीजिए आई एंड आर नॉट एग्जैक्टली स्मॉल, ये थोड़ा बाहर में आता है, थोड़ा ज्यादा होता है, कोई इंक्लाइन देख रहा है, इसका जो अपरेंट हाइट अपरेंट डेप्थ में क्या असर पड़ेगा, इट इज अनदर पार्ट। अंडरस्टैंड, डू यू फॉलो मी टिल नाउ, एनी डाउट। I am doing the patch work, सर तो पढ़ा चुका है normally what are given in your NCERT books, it does not beyond gone from NCERT books। NCERT book में जितना दिया 9th क्लास 10th क्लास में, तो इसी वर्मा का 9th क्लास 10th क्लास जो कंसेप्ट दिया वही पढ़ाया है, तो बाहर में नहीं जाता है, कोई +2 का कोई एंट्रेंस का एसेंस नहीं है इसमें। तो मैं बता दिया, आई एम नॉट talking from my mouth, I am explaining also through the word and through the experiment that already taught, again I am teaching, ठीक है, ऐसा होता है, but he is no doubt good teacher, by experience he will get। Okay, right now the demo class is going on, right now I am going another concept is the inclined view। inclined में तो वो तो चांस नहीं दिया, नहीं पढ़ा है आपको, but it is so far eye concern is very important। कोई ऑब्जेक्ट को किस मीडियम पर इंक्लाइन में देखेंगे, आई आर नॉट इक्वल, नॉर्मल व्यू नहीं होगा, आई आर होगा, आई आर मस्ट बी ग्रेटर एंगल्स, इट कैन नॉट बी नेग्लेक्ट, इट कैन नॉट बी मिस्ड। ओके, इसमें कैसे होगा,
ठीक है, हम बताएंगे आपको। देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे होता है, जो प्याच और का कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट इसको छोड़ दिया गया, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सो दैट यू फील बेटर, अगेन फील बेटर। प्रॉब्लम में न्यूमेरिकल साथ साथ लेता हूँ। आप देखिए जो प्रॉब्लम दिया था, किंग फिश और डाइविंग कर रहे हैं, नीचे से फिश के ऊपर जा रहा है और इसको फेलोशिप में फॉर्मूला के ऊपर डाल दीजिए, विद इन ए ग्लांस यू गेट आंसर 4.5 मीटर पर सेकेंड। अगर कुछ फिश का वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, बार का ऑसिलेट होता है, क्या होगा, आज बोथ ऑसिलेटर क्या होगा, कोई एक का वेलोसिटी कांस्टेंट दूसरा का ऑसिलेट होता है, कैसे होता है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे लीजिए, बस आपका आ जाएगा। ये बेसिक है, ठीक है। अभी मतलब इंक्लाइंड व्यू, इंक्लाइंड व्यू में कैसे करता हूँ, इंक्लाइंड व्यू इंक्लाइंड व्यू, दोनों व्यू होता है, एक नॉर्मल व्यू, एक इंक्लाइंड व्यू होता है। हम ओडिया कौन सी बांको चाहानी, ओके, संस्कृत ओडिया कौन सी बांको चाहानी माने बंके की देखिबा, वेयर आई एंड नॉट आर स्मॉल, ठीक है, समझ आया। तो नॉर्मल व्यू के ऊपर कुछ डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम, देखिए ऑप्टिक्स ऐसे चीजें हैं, एक बार आपको अच्छा से पढ़ा दिया गया, ऑप्टिक्स के प्लेन इज नॉट द मैकेनिक्स, आप आराम से क्वेश्चन कर सकते, कोई भी प्रॉब्लम, इट इज द क्रेडिट ऑफ द ऑप्टिक्स। एक बार समझ लिया और एक बार ऑल concepts should be profusely explained. Part of the problems come 90% problem you can do yourself. Little bit of idea you have, definitely you can approach. देखा है, देखिए देखा है मेरा लाइफ में। अब देखिए इंक्लाइंड व्यू, इंक्लाइंड व्यू देखो तो हम ओडिया कौन सी बांको चाहिए, तो कैसे है, अब देखता हूँ आपको। देखिए इंटरफेस, ये डे डायग्राम बनाता हूँ। अब कैसे देखेंगे बांको चाणी क्या है, यहाँ पर मान लीजिए एक फीस है, एक्चुअल डेप्थ, ये डी एक्चुअल, राइट। हम लोग इससे नॉर्मल लिया, नॉर्मल नाइदर रिफ्लेक्टेड, और एक लिया में से, ठीक है, ये एंगल ऐसे लिया, इसको डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर टू रेयर, बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, am I right? फिश बार देख रहे हैं, इससे होगा ये µ2, ये µ2, ये µ1, µ2 greater than µ1. So if the ray coming from denser medium to rare medium, bending away from normal, am I right, or towards normal, which one correct? If rays coming from denser to rare, bending away from normal or towards normal, bending away from normal or towards normal, Away from normal. very good. So ऐसे में बेंडिंग ऐसे लिया है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, और एक ले देता हूं मैं, वेरी क्लोज रे, ये नॉर्मल, बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल, राइट। इसमें ऐसे दोनों को मैं ऐसे कर दिया। नाउ इमेज इज हियर, ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था, अभी इमेज यहाँ पर है, थोड़ा यहाँ पर आंख है, ये आंख को इसे आता है इंक्लाइंड व्यू, राइट। अभी रेज एंटरिंग इनटू द आई, but this I and R, this incident ray I
and it is R is not small. Therefore, it is inclined view. But image will be that will come to here, not along the normal, it's come to here. So this is the H apparent, D apparent. This is the D actually D apparent. Do you follow me? Do you follow me? इसका थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। मैं बता था आपको, अभी तो आपको रिसर्च जरूरत नहीं है, ये रेड डायग्राम बता दिया। तो आपको इंक्लाइंड व्यू में क्या होता है, नॉर्मल व्यू में जो डी अपरेंट शुड बी अलोंग द नॉर्मल, और इंक्लाइंड व्यू में थोड़ा लैटरल शिफ्ट होता है, इतना शिफ्ट होके दिखाई देता है, थोड़ा ऐसे देता है, राइट में दिखाई देता है, थोड़ा शिफ्ट करके हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करके दिखाई देता है। दैट इज द ओनली डिमेरिट और बेनिफिट। सो डी अपरेंट क्या है? तो डी अपरेंट कितना होगा फॉर्मूला आप याद रखिए। मान लीजिए इसका हाइट एच, कैपिटल एच, और डी अपरेंट फॉर्मूला याद रखिए। हम प्रूव कर सकते हैं, इफ यू टेल्स आई कैन प्रूव ऑल्सो, एच बाई म्यू, म्यू कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रूट ओवर होल टू द पावर क्यू। थीटा क्या है? थीटा मीन्स इट इज आई लगा दीजिए, हम इसको थीटा पकड़ा तो इसमें आई कर दीजिए, ठीक है, आई पकड़ा में इसका आई, इस आर इज इक्वल टू थीटा जो इंक्लाइन दिखाता है, इस आर इसको थीटा, थीटा जो इंक्लाइंस, इसके यहाँ से नॉर्मल से कितना ट्रेंड में कितना बेंड होके देख रहा है, दैट इज थीटा। तो डी अपरेंट इज इक्वल टू एच बाई म्यू, म्यू कॉस थीटा 1 माइनस म्यू साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट होल टू द पावर क्यू। आप देखिए, अगर ये इंक्लाइन व्यू का फॉर्मूला, अगर नॉर्मल व्यू में तो थीटा कितना होता है, ये बिकम्स नॉर्मल व्यू, तो आंख कहाँ पर आता है, इसमें आ जाता है, ये नॉर्मल व्यू, ये इंक्लाइन व्यू, थीटा कितना एंगल होता है, इफ इंक्लाइन व्यू बिकम्स नॉर्मल सो थीटा मस्ट बी 0। am I right or not? Hello, hello, theta becomes 0, are yes or no? Come on, to tell me, if inclined view becomes normal view, theta must be 0। आप थीटा यहाँ पर डाल दीजिए, cos 0 1, ये कितना होगा देखिए, ये cos 0 1 होता है, ये 1 माइनस म्यू स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, ये म्यू को हो जाएगा डी अपरेंट इज इक्वल टू cos 0 1, ये म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये एच बाई म्यू आ जाता है, राइट। ये कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0, cos 0 इज इक्वल टू 1, ये म्यू क्यू 1 माइनस म्यू स्क्वायर साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0 रूट ओवर, गलत लग रहा है मेरे को, नहीं आता है, एच बाई म्यू, थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स लगा दीजिए, cos 0 इज इक्वल टू 1, ये म्यू क्यू हो जाता है, म्यू क्यू हो जाता है, ये तो 0 हो जाएगा, 1 का रूट ओवर 1, ये म्यू cos थीटा होल क्यू एच बाई म्यू, डी अपरेंट इज इक्वल टू डी बाई म्यू होना चाहिए ना, थीटा इज इक्वल टू 0, इसमें रूट ओवर हो गया कि नहीं क्या, इसमें थोड़ा गलत फॉर्मूला आता है, डिराइव करना चाहता हूँ, आई वांट टू गो फॉर डिराइव सो दैट इट इज, बिकॉज एच बाई म्यू होना चाहिए, एच बाई म्यू नहीं आता है, बिकॉज ये cos 0 तो 1 होता है, थीटा इज इक्वल टू 0, cos 0 1, सो म्यू क्यू बाई म्यू क्यू, म्यू स्क्वायर एच हो जाता है, एक्चुअली एच बाई म्यू होना चाहिए, एच बाई म्यू होना चाहिए, राइट, एच बाई म्यू, ये म्यू है यहाँ पर, म्यू नहीं है, सॉरी,
दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पर फॉर्मूला में म्यू नहीं है, h by म्यू, ये cos थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू साइन थीटा, एक्चुअल आंसर। देखिए थीटा इज इक्वल टू 0, if theta is equal to 0, if theta is equal to 0, then inclined view shift to normal view, thus d apparent is equal to h by mu, h by। देखिए एक क्वेश्चन क्यों मैं बताया, इसमें बिलीव मी एक क्वेश्चन रिसेंटली आया है। ये क्या है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री गिवन, 30 डिग्री नेवर बी स्मॉल, पता I एंड R थीटा विल बी स्मॉल देन नॉर्मल व्यू, बट क्वेश्चन दिया गया बीच में थीटा मस्ट बी 30 डिग्री। So if theta is given 30 degree, find the apparent depth. That means this formula you can adapt. If theta is equal to 2 degree, 3 degree, 4 degree, then you can h by mu. But theta is angle 30 degree, that means larger angle of inclination, larger, the view must be with much larger angles. So 100% we can theta put the priority given the theta 30 degree, then you get answer. A questions recently आ चुका है। Do you follow me? This formula you have to remember. This is a parental formula. From this formula you can go for normal view. So this is the general formula. Understand? D apparent के लिए normal क्या general formula? H by mu whole into cos theta divided by 1 minus mu square sin square root over. Then you can get answer. Hello? Do you follow me? Hello? Hello, do you follow me? Any doubt? इसको भी प्रूव कर सकते हैं, बट यार ये राइट आई कैन प्रूव इस, बट इट इज स्लाइटली लेंदी, बट बेटर आई सजेस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला। अभी आपको नीट टारगेट है, ये फार्मूला याद रख लीजिए, बस काम हो जाएगा। अगर थीटा कोई एंगल दिया गया 15 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री दिया गया, इसका वैल्यू मस्ट बी गिवन, यू कैन पुट एंड गेट द आंसर इमीडिएटली। Am I right? हेलो? ऐसे कुछ कुछ जो कंसेप्ट छूट गया था मैं आपको बता देता हूँ, रिफ्रैक्शन का मेन फॉर्मूला क्या है बता सकते हैं? Which formula? Everything coming from one source, one parents का फॉर्मूला क्या है? This formula do you know? जितना may be plane surface, may be curved surface, may be part of the surface refractions, इसका मेन फॉर्मूला क्या है? mu2 by v minus mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 by r. इस फॉर्मूला को आप आराम से समझ लिया, जो आई एम गोइंग टू मे बी टीच स्टूडेंट, आई डोंट नो दैट कैन से आपसे भी मीटिंग। इस फॉर्मूला का जो एप्लीकेशंस आपको मालूम हो गया अच्छा से, एवरीथिंग यू कैन सॉल्व इजीली। ये पेरेंटल फॉर्मूला ऑफ लेंस का रिफ्रैक्शन टू एनी मीडियम्स, मे बी कर्व, मे बी प्लेन, मे बी, पर नॉन होमोजेनियस मीडियम में जो अप्लाई नहीं होगा। देखिए एक नॉन होमोजेनियस में छोटा सा प्रॉब्लम दिया था, नीट में आया था, this question I want to discuss, I hope you can do. Right, let us look one question from NEET, and good questions, level of questions is very good. Okay, नॉन होमोजेनियस क्वेश्चन आया था, आप देखिए एक क्वेश्चन आया था नॉन होमोजेनियस से। क्या क्वेश्चन था? जैसे एक मीडियम है, जैसे एक मीडियम है, ये इंटरफेस, ये मीडियम mu is equal to air, that is homogeneous. ये mu is equal to 1 plus h by y,
y is coming measuring from here, h is the total height. ओके, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख लिया, यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट जिसका हाइट कितना x, इसका हाइट यहाँ से यहाँ तक x, ये ऑब्जेक्ट, इसका अपरेंट हाइट कितना होगा, अपरेंट डेप्थ कितना होगा। और दो ये छोटा सा क्वेश्चन नीट में आया था, नीट का क्वेश्चन, mu is equal to 1 plus h by y is going more towards depth, y का वैल्यू बढ़ते 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 जाएगा, if y will be more mu will be less, that means here mu less, here mu is more, mu y का साथ फंक्शनली रिलेशन है, तो इसका अपरेंट डेप्थ कितना होगा। ये नीट का क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन 15-16 ऐसे जो क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, हमसे सीखना चाहिए, ये क्वेश्चन में बनाता हूँ। नॉट आई एम नॉट एक्सप्लेन द नॉर्मल क्वेश्चंस, mu is equal to c by v, c दिया है, v दिया है, v लिखा दीजिए, ये आपके लिए कुछ फायदा नहीं होगा, जो मेरिट स्टूडेंट है इसके लिए कुछ फायदा नहीं होगा। पता है ये क्वेश्चंस आई एम गिविंग फॉर यू, यू कैन डू, टेल मी Subhasis, you can tell. Subhasis, are you there? You can tell. ये कितना होगा, mu is equal to 1 plus h by y, please do it, please do it, please, I am request to you, please do it। ये प्रीवियस नीट क्वेश्चंस अभी फिलहाल आ चुका है, कुछ दिन का मे बी 19 और 20 आई थिंक से, दिस टाइप से, बिफोर 18 आफ्टर 18 दिस क्वेश्चंस फॉर द अपरेंट डेप्थ। देखिए नीट में जो 45 क्वेश्चन होते हैं, 4-5 क्वेश्चन आप मान लीजिए छोड़ दिया, हो गया आपका, गया चला गया, उड़ीसा से चला गया, नहीं आएगा। दैट इज द टॉप ऑफ द नीट क्वेश्चन अच्छा है, और जो 4-5 क्वेश्चन आएगा हाई लेवल से, इसको जो बनेगा वही बुकंदर का सिकंदर। दैट इज, टेल मी हाउ कैन डू। देखिए डी अपरेंट डी बाई म्यू होता है, डी अपरेंट स्मॉल डी अपरेंट, फॉर्मूला होता है सॉल्यूशन डी बाई म्यू होता है, इसमें एच बाई म्यू होता है, म्यू कितना 1 प्लस एच बाई वाई, तो एच हम लेते हैं इसको तो डी वाई, इंटीग्रेशन लेता है 0 से x, बस हो गया आंसर। डू दिस, कितना हो गया डी अपरेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड, इसमें लॉन 1 प्लस एच बाई वाई अगेन एच, इंटीग्रेशन डिवाइड बाई एच, ठीक है, इसका कितना 0 से एच, वाई 0 से एच, सो 1 बाई एच कितना आता है लॉन एच बाई लॉन 2 माइनस वाई के प्लेस में 0 होता है, लॉन इन्फानाइट 0 से एच होता है, 0 से एच होता है, इसको पका दीजिए एच बाई एच, ये 1 वाई इक्वल टू एच, वाई इक्वल टू 0 होता है, लॉन इन्फानाइट होता है, आपको मैं यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया, ये वाई बाई एच होगा, ये क्वेश्चंस आई फॉरगेट, वाई बाई एच होगा, इसमें वाई बाई एच कर दीजिए,
y by h होगा, कितना होगा dy 1 प्लस y by h, y by h होगा y by h, ये y by h। फिर वैल्यू पक्का था ln 2 होता है, ln 0 होता है, 0 ln 1 मीन्स 0 डिवाइड बाय h, so answer h ln 2, h ln 2, this is the answer. B apparent is equal to h ln 2. Do you follow me? Hello. Hello. Do you follow me? Do you follow me? Any questions from your side? देखिए, ये क्वेश्चन का कुछ डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा हल्का से झटका दिया, छोटा सा झटका दिया आपको वेरिएबल करके, छोटा वेरिएबल करके, ऐसे कंटिन्यूस वेरिएबल नहीं है, एक सेपर्ट का नॉन होमोजेनियस मीडियम होता है, जिसका इक्वेशन दिया गया, फिर अपरेंट हाइट कैसे निकालना। डू यू फॉलो मी? हेलो, एनी डाउट फ्रॉम योर साइड्स? एनी डाउट आप पूछ सकते हैं, एनी डाउट फ्रॉम योर साइड आप पूछ सकते हैं, प्लीज टेल एनी डाउट, एनी डाउट बताइए। This type of, from this I tell why I'm explaining this type of problems. Please remember, if you not practice this type of problems, you definitely feel problems, rank may not be come to you. नीट का फिजिक्स इजी होता है, और जो आप अप टू 35 प्रॉब्लम्स इजी, but after 35 to 45 those problems are highly difficult for the normal students. इसको जो बना पाएगा उसका रैंक आएगा, दिस इज द ट्रिक्स। तो बड़ा बात नहीं, देखिए मैं कुछ ज्यादा बात नहीं किया, वेरिएबल इंटीग्रेशन को हमको लाना चाहिए, इंटीग्रेशन तो होना चाहिए, वेरिएबल में इंटीग्रेशन की जरूरत है, सो मैं dy ले लिया, फिर इंटीग्रेशन 0 टू h कर दिया, क्योंकि हाइट 0 टू h था, ऑब्जेक्ट हाइट इंटरफेस का, इंटरफेस यहाँ पर कांस्टेंट था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कांस्टेंट था, सो हम लोग जनरल फॉर्मूला नॉर्मल भी में डाल के इंटीग्रेशन दिया, दैट इज आवर कांसेप्ट ऑफ लिटिल बिट ऑफ ट्रिक्स यू कैन डू। ओके ओके, so any questions from your side? ऐसे ऐसे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट छोड़ दिया गया, हम लोग पढ़ाएंगे, फिर मेजर कॉन्सेप्ट छोड़ दिया, जो रिफ्रैक्शन थ्रू वेरिएबल मीडियम होना चाहिए, न्यू द फंक्शन ऑफ y, न्यू द फंक्शन ऑफ x, ऐसे कैसे प्रॉब्लम होता है। कल इंटरनल रिफ्लेक्शन में पढ़ा गया, तो इंटरनल रिफ्लेक्शन में जो प्रॉब्लम आता है एक ऑप्टिक फाइबर में आता है, आपको सुना है जियो फाइबर अब चल रहा है। जियो फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर, और इसमें कोई केबल नहीं है, लाइट का हिसाब चलता है, लाइट का इंटरनल रिफ्लेक्शन में ये केबल फॉर्मेशन होता है। ये कैसे फॉर्मेशन होता है, इसको क्लैडिंग क्या है, किसका अंदर में कैसे दिया जाता है, फिर आपको जो एंगल ऑफ क्लोजिंग बता दिया, थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बाय म्यू, इसका तो इतना तो नहीं आता है, इसका ऊपर में आता है क्वेश्चन। तो मान लीजिए एक ब्लॉक लिया, ग्लास का ब्लॉक लिया, इसका अंदर में एक इंक डॉट ले लिया, इसमें जो क्यूबिकल ब्लॉक को कितना पार्ट आपको कवर करेंगे जो लाइट कैन नॉट बी पास आउट, और कितना मिनिमम पार्ट, मैक्सिमम पार्ट कवर करना चाहिए, कितना मिनिमम पार्ट में लाइट आना चाहिए, दैट इज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स विल कम। कौन फॉर्मेशन होता है, इसका एंगल के नाम कितना होता है, ये भी फॉर्मेशन हो, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्टिकल फाइबर का ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज राइट नाउ लेटेस्ट ट्रेंड इज गोइंग ऑन इन इंडिया, एवरीवेयर ऑप्टिकल फाइबर्स, जो फाइबर यूज होते हैं, that type of problems may be come. Okay, so already 1.5 hours gone, let me complete, because don't take, otherwise I'm coming just now
to teach these things. What was left, and I feel myself, what you feel, I don't know. I feel myself this type of problems is useful to you. So thank you for this. Okay, thank you.